So as a creator, it's my duty to show you each and everything what's going on in my life. I have to record it and I have to upload it so you can get a better idea. All the goods as well as the worst that I'm facing. And let me share with you, biggest fear faced being as a content creator thing is when your data gets corrupted. You heard it right. Sometimes our data get corrupted for random reasons. हमारा कार्ड जो होता है which we are using to record our videos in our camera as well as in our GoPro. As you all know, on my channel the 9th or 8th episode has been going on, the Ladakh motovlog. But there are some things that happened which were unplanned, which I didn't think will go wrong. And that thing was कि मेरे जो GoPro की files थी where I was telling about the place, the conversation with the people and telling my perspective about that journey, वो फाइल्स करप्ट हो गई. Yes, I was using GoPro Max. GoPro Max में you all know we have to render that footage again in our phone to save it. Otherwise sometimes in some cases अगर हम कार्ड निकाल देते हैं it gets deleted. footage काम की नहीं रहती हैं. And with me, so what we can say, we can learn from the mistakes. And what I tried to do is, what if I lost my files in Leh Ladakh solo ride? I'll cherish those moments. Those memories will always be in my mind and I'll get the inspiration from experiences that I got and it will always be a memorable journey for me. I'm not able to show you those footage again because those clips are deleted. And at this moment the choice that I was left with was कि जो cinematic footages like drone shots and the cinematic things which I took from my camera, उसको मैं कहीं ना कहीं save रखूं जो मेरा raw footage है. And here I am 2022 and second thought जो मेरे mind में आया वो ये था, let's complete this thing, let's complete the project and if you lost the files, let's go again to visit the Ladakh and re-record them. And the same thing I did. तो जो series अब शुरू होने वाली है ना कहीं ready हो जाइए. It will be a fusion motovlog, my solo ride, Himalayan BS6 and 2022 where I am going to do the Leh Ladakh ride from my CRD 2015 Mahindra Thar. Guys, you heard it right. जो भी अभी तक आपने सुना है. And इसके बाद let me take you directly to the preparation section where I am getting prepared to hit the roads again to reach to Leh Ladakh again. So let's cut this short and directly get into the preparation part. उसका जो आगे का वो है वो So guys, as you all know, there was a lot of work pending on my Thar and in that pending work, the most important thing was the suspension of my vehicle. So here we got something. This parcel is by Amazon. It took almost 3 to 4 days to reach me. Finally we have it here. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है guys suspension. We are going to replace it on my Thar. These suspensions are by Profender. आपने इस ब्रांड का नाम कई बार सुना होगा. When it comes to off-roading suspension, तो the best इस टाइम मार्केट में है which you can get. On the other hand, hydraulic suspension है. भाई कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है. ऑन माई CRD Thar 2015 जो अभी तक उसके सस्पेंशन की परफॉर्मेंस थी उससे कहीं ज़्यादा अब अपग्रेड होने वाली है. सो लेट्स गेट देम फिटेड, लेट्स गेट द वर्क डन. एक छोटा इशू है कि बैकडोर जो है ना वो काफ़ी साउंड क्रिएट कर रहा है एंड इधर पे खाली स्पेस आप देख सकते रिवर की तरफ, तो ये भी सब थोड़ा सॉर्ट आउट कराना है, थोड़ा फिनिशिंग देनी है इसको. एंड सेकेंडली लास्ट टाइम अभी ऑफ रोड करके आए थे तो तब ये चीज़ हो गई. इसको भी फिट करवा देंगे, गाड़ी हो जाएगी फुल पावर रेडी डू अगेन ऑफ रोड. ऑन द अदर हैंड जब हम टायर साइज अपग्रेड करते हैं तो साथ सस्पेंशन अपग्रेड करना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज जो आपके स्टॉक सस्पेंशन है वो उतना ज़्यादा लोड झेल नहीं पाते फेल वाइल ऑन रोड. तो उससे बढ़िया है कि भाई पहले ही चेंज करवा लो. एंड द रिम्स ऑन विच दीज टायर्स आर फिटेड, ये 15 इंचर ऑफ रोडिंग रिम्स. इसका साइज जो है. चलो भाई, तो यहाँ आगे अपनी थार वर्कशॉप पे अभी सस्पेंशन चेंज करेंगे एंड चेक करेंगे कि बाकी क्या क्या काम है जो अभी बाकी है गाड़ी में. एंड विल चेक आउट थॉरली, इंस्पेक्शन करेंगे गाड़ी की एक एक चीज़ का एंड पता करेंगे कि क्या पार्ट रिक्वायर्ड है अभी जो चेंज करके गाड़ी की परफॉर्मेंस और बेहतरीन हो सकती है और बढ़ सकती है. एंड कौन से पार्ट्स रिप्लेसमेंट मांग रहे हैं पता करना है गाड़ी में कि क्या क्या काम पेंडिंग है. सस्पेंशन का सोच के बैठे हैं चले कि 2-4 चीज़ें और नई ऐड ऑन हो गई हैं जो अभी काम कराना पड़े, तो भाई वो सब अभी चेक करना पड़ेगा. जो खटपट वटपट जो साउंड सारी क्रिएट हो रही हैं वाइल वी आर डूइंग ऑफ रोड. फिलहाल अपनी मॉम है यहाँ पे आके अपने साथ मना किया था, मैंने कहा घर में रह लो, बट इनको शौक है ना गाड़ी में कुछ भी काम होता है तो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड ये होती हैं. तो फर्स्ट इनको जाना होता है पहले देखने के लिए कि क्या चल रहा है ना, नहीं तो खाना हजम नहीं होता आपका. नहीं भाई, गाड़ी का काम देख रहे हो कितनी मेहनत लग रही है. दैट हैपन्स
when you are driving a customized car, because customizations के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूटती रहती हैं, and then you have to replace them according to your requirements. तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। तो फिलहाल वही कर रहे हैं हम यहाँ पे वर्कशॉप में, एंड गाड़ी पीछे देख सकते हो आप खड़ी हो रखी है। तो बस अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या क्या काम होता है, भैया क्या क्या काम बताते हैं। फ़िलहाल वो जा रखे हैं, अभी आके चेक करेंगे क्या क्या सीन होता है गाड़ी में, आपको फिर आगे बताते हैं जैसा भी रहता है मामला। देख लो आप, जैक लग चुके हैं नीचे, एंड अभी इसको लिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद चेक करा जाएगा कि सस्पेंशन में जो पूरा सिस्टम होता है, नॉट ओनली सॉकर्स, जो सस्पेंशन में बाकी चीज़ें हैं वो सही से वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, एंड शुड वी नीड टू रिप्लेस देम, और काम चल जाएगा। ये चेक किया जाएगा अभी क्या हिसाब होता है। भाई जी मतलब ज़्यादातर जो ऑफ रोडिंग में साउंड्स वगैरह आती हैं ना, तो वो बेसिकली सस्पेंशन का ही प्रॉब्लम निकलता है ना गाड़ियों में लगभग। सो भाई 90% केसेस में मैंने ये सुना है, वेन एवर द साउंड्स आर कमिंग फ्रॉम योर व्हीकल व्हेन यू डूइंग अ ऑफ रोड पैच, उसका रीज़न 90% टाइम्स कहीं ना कहीं सस्पेंशन ही निकलता है, तभी कहीं ना कहीं साउंड्स क्रिएट होते हैं। सस्पेंशन सिस्टम तो आप ऊपर बुशेस के साथ कनेक्ट होता है। These are the current stock suspensions मेरी गाड़ी में लगे हुए हैं। दो इसमें आगे के हैं, दो पीछे के हैं। ये अपने सस्पेंशन जो अभी हम अपग्रेड कराने वाले हैं इस गाड़ी पे, दो रेयर हैं इसमें आगे के और दो हैं पीछे बैक के। सो भाई दिस इज़ द प्रोडक्ट जो अभी अपनी गाड़ी में डल जाएगा आगे और पीछे। वो अपग्रेड तो करा ही लेते हैं, वो स्टॉक है वो तो फिर बिक भी जाते हैं, वो हाफ रेट में अपना सेल आउट हो जाएंगे। नहीं नहीं एज माई विश क्या है यार, जो सेंस है वैसे बोल रहा हूँ। कोई भी कुछ समझाएगा तो समझ जाएगा। तो चेंज क्यों करा रहे हो? तो भाई चेंज बेटरमेंट के लिए होता है। व्हेन वी आर ऑन ऑफ रोड तो उस टाइम पे क्या है कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए ये अपग्रेडेड होते हैं। जो स्टॉक सस्पेंशन है उनसे हो गया ना, बट अभी खर्चा तो हो गया और अभी खर्चा वसूल हो। जब इसमें कुछ एक्सट्रीम ऑफ रोड्स किए जाएंगे, कुछ एक्सट्रीम सर्किट्स कवर किए जाएंगे, मोस्ट ऑफ द थार्स उन्हें सस्पेंशन जो है अपग्रेडेड है। इवन द टायर साइज इज़ अपग्रेडेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब टायर साइज अपग्रेड होता है तो सस्पेंशन आपको अपग्रेड करानी ही चाहिए। कोई ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा ना, व्हेन वी आर डूइंग समथिंग एज अ कंटेंट क्रिएटर। ये आप लोगों का हक बनता है कि आप लोगों को पता चले कि व्हाट्स हैपनिंग इन माई लाइफ एक्सेप्ट जस्ट बीइंग इन द माउंटेन्स। उसके अलावा मैं अपनी डे टू डे लाइफ में क्या करता हूँ, सारी चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी ना। तो भाई उसके लिए डेली कंटेंट अगर चाहिए तो भाई फिर दिखाना पड़ता है ना। अब मॉम कह रही है कि मत दिखाओ, दिखाना पड़ता है, बट हर चीज़। तो भाई जी पूरा सेटअप खुल चुका है। ये 3 फिलहाल बॉक्सेस भाई ने खोल चुके हैं। सस्पेंशन से उधर जा चुका है, एक सस्पेंशन उधर लग रहा है, एंड बाकी 3 जो हैं भाई ने खोल चुके हैं। ये 1 2 3 देख सकते हो आप। तो भाई 2 तो डल जाएंगे आगे और 2 डलेंगे पीछे। जी मतलब आगे वाले सस्पेंशन का ज़्यादा काम होता है ना पीछे वाले से? पीछे इस पर कमानी होती है। पीछे कमानी होती है, अच्छा जी। तो बेसिकली मतलब ये जो पूरा तामझाम होता है ये आगे वाले सस्पेंशन में ज़्यादा होता है, पीछे मतलब सॉर्टेड रहता है खाली। ठीक ठीक ठीक। पीछे वाला है वो काफ़ी सॉर्टेड रहता है, उसमें जो शॉकर होता है वो डलता है, एंड बाकी कुछ इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा उसके पार्ट्स नहीं होते हैं। बट आगे जो है आगे पूरा सिस्टम होता है भाई, पूरा मतलब 5-6 कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स होते हैं जिन्हें एक साथ मर्ज करके एंड देन पूरा सस्पेंशन सिस्टम क्रिएट किया जाता है, नॉट ओनली द शॉकर्स। भाई मतलब देख सकते हो आप कितने मैसिव लग रहे हैं इस टाइम पे। एंड ये जो ब्लू इनका थोड़ा सा ऊपर पे ये रबड़ है ना, ये इसके साथ ये थोड़ा इसमें कलर में थोड़ा सा और पॉप आउट कर रहा है, इसको थोड़ा सा वेरिएशन ला रहा है। एंड जो इसका बेसिक कलर है वैसे वो ग्रे है, जैसे कि आप देख सकते हो बॉडी पे। एंड उसके ऊपर स्टिकरिंग है आपकी प्रोफेंडर की, प्रीमियम सस्पेंशन। बाकी तो भाई वंस दीज सस्पेंशन गेट इंस्टॉल्ड, आफ्टर दैट आई विल राइड द थार एंड चेक आउट द डिफरेंस दैट आई एम फीलिंग वाइल राइडिंग द थार। अगर कुछ मेजर डिफरेंस पता चलते हैं तो आपको मैं वीडियो पे बताता हूँ। और होपफुली सस्पेंशन चेंज करने के बाद काफ़ी चीज़ें हैं गाड़ी में, जैसे बॉडी रोल इशू एंड थोड़ी बहुत और माइनर चीज़ें हैं, वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। गेट का जो इशू है, इस गेट के इशू के लिए मेरे को जाना पड़ेगा किसी ग्रिल वाले बंदे के पास, वो भाई करेगा इसमें
जो ये लॉक है ना, ये देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा जाम हो रहा है, जिस पे ये पूरा टायर जो है इसका वेट है, ये अलग से सिस्टम क्रिएट किया गया है कस्टमाइज़ करा के। दिस इज़ द डोर ऑफ द थार एंड ये जो पूरा सिस्टम है, दिस सिस्टम इज़ सेपरेट। ये पूरा ग्रिल्ड पार्ट अलग से इसके ऊपर कस्टमाइज़ कराया गया है। ये पूरा टायर होल्ड है विच इज़ नॉट लाइट वेट एट ऑल, बहुत हैवी है भाई, ये कम से कम 20-30 किलो का होगा, उससे ज़्यादा ही ना हो। ऑन द अदर हैंड ये जो डोर है, डोर के साथ कोई इशू नहीं है, फ़िलहाल ईजीली बंद हो जा रहा है एंड ईजीली खुल जा रहा है, बट दिस इज़ द थिंग विच इज़ क्रिएटिंग अ बिट ऑफ ट्रबल। दिस लॉक इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आई शुड रिप्लेस दिस होल थिंग एंड इसमें जो दूसरा रिप्लेसमेंट है वो लगवा लूँ। इधर भी थोड़ा सा लॉक केज है, इस पर भी थोड़ा सा काम कराना है, तो ये चीज़ है। तो भाई ये चाहती थी मैं मजदूर बनूं और मैं ब्लॉगर बन गया। तब से मेरे को ब्लेम कर रही है, तू वहाँ जाके चेकआउट क्यों नहीं कर रहा है काम, तू उस काम पे फोकस क्यों नहीं कर रहा है, तेरे को काम करना सीख। थार का कहीं बीच में बंद हो गई तो द सस्पेंशन गेट चेंज्ड, तो वो जो चीज़ है वो कम से कम 3-4 साल तक कहीं नहीं जा रही है, अगर अच्छे से मेंटेन की जाए। इफ़ यू आर रेगुलर ऑन ऑफ रोड्स मे बी 1.5 ईयर, बट उससे पहले उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। ऑन रोड जो दिक्कतें होती हैं वो होती हैं पंचर, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़ इन द व्हीकल, तो वो सब चीज़ें अलग हैं। मॉम इज़ राइट एट सम पॉइंट की जो भी चीज़ आपकी उसके आपको सारे पार्ट्स वगैरह पता होने चाहिए। वही बाद में लगवाएगा ये। हाँ भाई जी, ये उसकी है, फॉर्च्यूनर की, इसकी नहीं है ये सीट है ना, क्योंकि जंक वंक ना, अब मैं सोच रहा हूँ फिर चेंज ही कराऊंगा। तो भाई ये सीट दे रही थी परेशानी हमें, तो फिलहाल हम भैया से इस सीट का काम करा रहे हैं और इसको निकलवा रहे हैं यहाँ से, एंड ये स्पेस पूरा खाली हो जाएगा, तो इधर पे फिर अपना लगेज और ताम झाम के लिए ये जगह पूरी प्री बुकड हो जाएगी। नीचे हल्का सा लॉक है इसके ना, शायद से हल्का सा खुलेगा। थार होने वाली है 3 सीटर, 1, 2 और 3, ये वाली सीट जाने वाली है और ये पूरी स्पेस खाली होने वाली है। भाई ऊपर के नट तो हमने खोल दिए जिन पे लगा था जाम, अब बचा है नीचे का लॉक, जो कि थोड़ा सा हो रहा है टैकलिंग, खोलने में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, बट वंस इट्स ओपन ये पूरा जो सीट का ये पूरा सेक्शन है ना, ये पूरा अलग हो जाएगा, बी मोर स्पेशियस। नहीं 3 सीटर रखूँगा, पर ये हटा रहा हूँ ना फ़िलहाल, अगर ज़रूरत लगी इन फ्यूचर तो ये तीसरी वाली भी हटा दूँगा, बट फ़िलहाल इस वाली को हटा रहे हैं क्योंकि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा साउंड क्रिएट हो रही थी एंड उसकी वजह से मेरे को धोखा हो रहा था कि सस्पेंशन में इशू है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो दिक्कत थी वो सीट में थी, सीट बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट कर रही थी कहीं ना कहीं, तो इसमें एक नई सीट लगवाने की एंड देखते हैं वो कार्य हम कब और कहाँ से पूर्ण कराते हैं। फ़िलहाल भाई जी लगे हैं पूरी मेहनत में, नीचे से एंगल बनाते हुए वो ध्यान से उस एंड कोशिश कर रहे हैं कि ये लॉक खुल जाए। आगे वाला लॉक तो हमने खोल दिया था, वो सेपरेट था, उसमें हल्का सा स्लाइड करना था एंड इट वाज इजीली ओपन्ड, बट ये जो पीछे वाला लॉक है ना, ये थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर रहा है। अगर काटने की ज़रूरत पड़ रही है तो काट दीजिए भाई जी। फंसा है वैसे निकल जाए तो अच्छी बात है। तो ये भैया कह रहे हैं कि फ़िलहाल अगर हो सकता है तो उसको उसके ओरिजिनल वे में निकाल लिया जाए, वापस से रिकवर कर लिया जाए, अदरवाइज़ फिर उस लॉक को काट के आगे काम करना पड़ेगा, बट इन दैट केस लॉक जो है वो ख़राब हो जाएगा। बट बहुत ही धैर्य और मेहनत का काम है गाइस ये, एंड फोकस चाहिए इसके लिए बहुत ज़्यादा। तो भाई मेहनत का फल होता है मीठा। भाई जी ने हमारी बहुत बड़ी सहायता कर दी है इस समय पे, बिना इस लॉक को तोड़े हुए भाई जी ने पूरा सेक्शन जो है ये अलग कर चुका है एंड फिलहाल सीट हो चुकी है हमारी अलग। भाई जी थैंक यू सो मच। एंड एक सीट आ चुकी है अपनी, अब इसको निकाल के एक साइड कर देंगे हम, एंड अगर किसी को देना होगा जो सीट के साथ आगे वो आपको बता दिया जाएगा। हाल अपनी जो 4 सीटर है वो हो चुकी है 3 सीटर, दैट्स फॉर श्योर। ऑलमोस्ट 2 मंथ हो चुके हैं बोलते बोलते दैट आई एम हेडिंग टुवर्ड्स ले, बट अभी तक नहीं जा पाया बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें निकल के आ रही थी, गाड़ी में भी काम था एंड प्रिपरेशंस तो हैं ही, तो वो सब अभी डन करने में थोड़ा टाइम लग गया, बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट सेटअप एंड अब कभी भी ले निकल सकता हूँ मैं एट एनी मोमेंट। तो भाई अपडेट्स के लिए रेडी रहो, बने रहो चैनल पे एंड कीप द सपोर्ट। वो सारे यहाँ पे हो जाएगा मैकेनिकल जो भी चीज़ें हैं, तो भाई एक बार आके सर्विस ज़रूर चेक करें। इधर पे आपका थोड़ा बहुत कॉस्टिंग लिखा है कि आपको क्या क्या कॉस्ट पड़ेगा फॉर विच सर्विस।
तो भाई अभी ऊपर तो मैं चढ़ नहीं सकता, बट आपको कॉन्टैक्ट भी मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। भाई कोशिश तो ये रहती है कि रेगुलर व्लॉग्स आएँ, बट आ नहीं पाते हैं, दैट्स अनदर सब्जेक्ट। तो भाई वो चीज़ भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। विल बी अ टाइम की जब डेली बेसिस पे कंटेंट आएगा, बट फ़िलहाल के लिए वीकली कंटेंट इज़ ओके मेरे हिसाब से, जो मैं कहीं ना कहीं पोस्ट प्रोडक्शन का काम एंड वो सब मैनेज कर पाता हूँ। तो उससे ज़्यादा अगर मैं आपको फ्रीक्वेंटली व्लॉग्स देना चाहूँ तो वो थोड़ा टफ हो जाता है मेरे लिए एट सम पॉइंट। तो वो चीज़ होगी, बट नॉट राइट नाउ।